Good morning, all of you. Now we will start our second part of Geography, Chapter 2. We will start now from the new topic, that is the Himalayan yew in trouble. ये क्या है? मेडिसिनल प्लांट है. The Himalayan yew is a medicinal plant. ठीक है, this is a medicinal plant found in various parts of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. A chemical compound called Taxol is extracted from the bark, needle, twigs and roots of this tree, and it has been successfully used to treat some cancers. The drug is now the biggest selling anti-cancer drug in the world. So just remember this thing. The species is under great threat due to over-exploitation. In the last 1 decade, thousands of yew trees have dried up in various parts of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. सोचो कितना important tree medicinal plant है और जिसका इतना critical condition हो रहा है due to what? Due to the exploitation. Cutting होती जा रही है और ये सारी problems होती जा रही है. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग किसको बोलते हैं? इलीगल हंटिंग जो होती है उसको. ओवर एक्सप्लॉयटेशन, देन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर्स विच हैव लेड टू द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी. सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स. अदर important causes of environmental destruction are unequal access, inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibility for environmental well-being. ये कुछ और problems भी हैं. क्या problems हैं? The first is unequal access. किसी के पास ज़्यादा है, ज़्यादा यूज़ करता है, कोई कम यूज़ करता है. अनइक्विटेबल कंजम्पशन हो गया. एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. कोई सोचता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई इग्नोर कर लेता है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. ओवर पॉपुलेशन इज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. और एक और प्रॉब्लम क्या है? ओवर पॉपुलेशन. However, an average American consumes 40 times more resources than an average Somalian. Similarly, the richest 5% of Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume than the poorest 25%. मतलब यही बात हो गई कि 5% लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है तो वो ज़्यादा यूज़ करते हैं और ज़्यादा डैमेज करते हैं, और 25% ऐसे पुअर हैं इंडिया में जिनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है ही नहीं. The farmer shares minimum responsibilities. मतलब जो रिचेस्ट है उनको क्या सोचते हैं कि भाई ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और सब वही है कि डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सब शेयरिंग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो कई लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं और कई लोग हैं जो एनवायरमेंटल को जो बचाना, उनको प्रोटेक्ट करने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मानते हैं. द क्वेश्चन इज हाउ इज कंज्यूमिंग वॉट, फ्रॉम वेयर एंड हु इज कंज्यूमिंग वॉट, फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच. तो अब यही बात हो गई कि कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है. सो दिस इज अ क्वेश्चन. Now do you know that over half of India's natural forests are gone? 1/3 of its wetlands drained up. पानी सूखता चला जा रहा है. 70% of its surface water bodies polluted. इतना गंदा पानी हो चुका है. 40% of its mangrove wiped up, खत्म हो रहे हैं. And with continued hunting and trade of wild animal and commercially valuable plants, thousands of plant and animal species are heading towards extinction. खत्म होती जा रही है. तो अब ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है? व्हाट आर द मेजर्स? क्या करना चाहिए हमें, क्या क्या तरीके हमें यूज़ करने चाहिए ताकि हम इन सब प्रॉब्लम्स को दूर कर सके. The destruction of forest wildlife is not just a biological issue. The biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity. सबसे मेन प्रॉब्लम है आज हम हमारे कल्चर से दूर होते जा रहे हैं. जो पहले हम इतना प्रोटेक्ट करते थे, इतना वाइल्ड लाइफ, इतना फॉरेस्ट, जो हमारी फीलिंग्स थी, आज धीरे धीरे वो फीलिंग्स खत्म होती जा रही है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं.
Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest dependent communities who directly depend on various components of the forest and wildlife for food. तो बस वही होता जा रहा है, धीरे धीरे सब का जो रिलेशन है फॉर फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, तो सब दूर होते चले जा रहे हैं इन चीज़ों से। कल्चर डाइवर्सिटी आती जा रही है। लोग जो पहले जितनी फीलिंग्स होती थी, पेड़ों की पूजा की जाती थी, जो हम जानवरों को नहीं मारते थे, आज ये सब चीज़ें हंटिंग होने लग गई है, डिफॉरेस्टेशन होने लग गया है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। Within the poor, women are affected more than men. In many societies, women bear a major responsibility of collection of fuel, fodder, water, and other basic subsistence needs. As these resources are depleted, अब धीरे धीरे ये रिसोर्स क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देन ड्रजरी ऑफ विमेन, मतलब विमेन क्या होती जा रही है, आलसी होती जा रही है। मतलब वही होता है कि उनको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर्स तक जाना पड़ता है सब चीज़ें कलेक्ट करने के लिए। फिर हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, फिर घर से दूर हो जाते हैं तो इंक्रीजिंग आवर्स ऑफ वर्क हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि भाई पास में ही कुछ काम मिल जाए, तो इसलिए धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, विमेंस का भी नेग्लिजेंस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। The indirect impact of degradation such as severe drought and deforestation include floods etc. also hits the poor the hardest. तो सारी प्रॉब्लम, ड्रॉट, अकाल पड़ते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है और लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। और इसी वजह से जहाँ पहले लोगों को इजीली फ्यूल मिल जाता था, फॉडर मिल जाता था, सब्सिस्टेंस प्रोडक्ट्स मिल जाते थे, आज उनकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पॉवर्टी इंक्रीज होती जा रही है। Poverty in these cases is a direct outcome of environmental destruction. Therefore, forest and wildlife are vital to the quality of life and environment in the subcontinent. It is imperative to adapt to sound forest and wildlife conservation strategies. तो ज़रूरी है, imperative, मोटिवेट करना है कि हम इन सबको अडॉप्ट करना है, कैसे हम वाइल्ड लाइफ को, कैसे हम फॉरेस्ट को, कंजर्वेशन पॉलिसीज़ कैसे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. But why do we need to conserve our forest and wildlife? क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो सॉइल, वाटर, फर्टिलिटी, जो एयर है वो सारा पॉल्यूट होता चला जाएगा, सब प्रॉब्लम्स होती चली जाएंगी, तो फिर कैसे लाइफ चल पाएगी। बट conservation preserve the ecological diversity and our life support system, water, air and soil. It also preserve the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. कि कैसे आगे से आगे जनरेशन चलती रहे। For example, in agriculture we are still dependent on traditional crop varieties. Fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity. अगर हमने एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी भी नहीं बचाई, नहीं कंजर्व की, तो फिशरीज़ को भी इफेक्ट होगा। तो यही प्रॉब्लम्स है, अगर हमने कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, तो बहुत सारी आगे जाकर प्रॉब्लम्स हमें ही फेस करना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, लिविंग हमें एसेंशियल गुड्स हैं, जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, हम वो कैसे मिलेगा, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी कंपल्सरी। इन द 1960s एंड 1970s conservationists डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, कि हमें प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, इन 1972, विथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड, कि हमें किस किस को प्रोटेक्ट करना है। The thrust
of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting. सबसे मेन हमारे लिए चुनौती क्या थी, थ्रस्ट क्या था कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है हम उनको बचाएं, हम उनको जो हंटिंग हो रही हम उनको बैन किस तरह से करें. गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. Subsequently, central and many state government established national parks and wildlife sanctuaries. ताकि वो नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जितने भी एनिमल्स हैं वो उन सबको ईजीली वो वहाँ रह सके, वाइल्ड लाइफ वहाँ ईजीली रह सके, कोई उनका हंटिंग ना हो, किसी तरह से उनका कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके. ओके. Then the central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, ठीक है, the Kashmir stag और Hangal. 3 types of crocodile: freshwater crocodile, saltwater crocodile and the gharial, the Asiatic lion and others. Most recently, the Indian elephant, black buck, chinkara, and the great Indian bustard, Godawan, and the snow leopard, etc., have been given full or partial legal protection against hunting and trade throughout India. So just remember all these names. Now Project Tiger.